Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where during the course of today's lecture I will be teaching you one aspect of analysis and interpretation of financial statements. Now, ये चैप्टर में जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, शुरुआत में हमने बैलेंस शीट किया, वो बैलेंस शीट के कुछ हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, फिर हमने रेवेन्यू स्टेटमेंट लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया और वो मैं आगे सिखाने वाला हूँ, और काफ़ी इसमें चेंजेस भी होने वाले हैं. कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड, डोंट वरी. मैं इतना बता रहा हूँ कि इफ़ आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ मनन प्रकाशन ऑफ SOI BCom, प्लीज़ डू रिमेंबर इट इज़ नॉट जस्ट फॉर SOI BCom या 14th स्टैंडर्ड, जो आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हो, जिसको भी वर्टिकल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट है. ओके, काफ़ी हद तक जब लोग MBA भी करते हैं, और अगर वो साइंस करके वो MBA कर रहे या आर्ट्स करके वो MBA कर रहे, उन्होंने कॉमर्स नहीं किया है, तब भी उनको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है. सो वेरी सिंपली पुट, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और जिन लोगों को उसका एनालिसिस पे बेस्ड सवाल पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये यूजफुल डेफिनेटली होने वाला है. सो हमने टिल नाउ व्हाट हैव वी लर्नड इन दिस? वेरी क्विकली लेट मी गिव यू द पास्ट टेंस, बिकॉज वो होके ही हम आज के प्रेजेंट टेंस में आ सकते हैं. ओके, सो वी हैव लर्नड दैट द बैलेंस शीट इन अ वर्टिकल स्टाइल दिखता किस तरह है. वेल, कुछ इस तरह दिखता है. मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर, अगर आपने पिछले लेक्चर्स मिस आउट कर दिए हैं, ये एक प्लेलिस्ट में होता है, तो आप स्टार्ट से शुरुआत कीजिए, डायरेक्टली यहाँ पर जंप मत करना. सो वी हैव अंडरस्टूड दैट अ बैलेंस शीट लुक्स इन व्हाट मैनर. देयर आर टू पार्ट्स टू अ बैलेंस शीट, sources and application, and both the parts within it have got multiple parts. right now उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक टाइम का बर्बादी होगा. लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कि एक इनकम स्टेटमेंट क्या होता है. ना होल्ड ऑन, एक इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है और जिसके अंदर P&L अकाउंट आ जाता है. एग्जाम्पल, शुरू होता है सेल्स से, फिर नेट सेल्स पे आ जाता है वो रिटर्न्स माइनस करके. ये जो वर्ड आप देखते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द फ्रेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अभी यहाँ पे कुछ दिखता नहीं, ये खाली है. बट अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानते हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, पावर, कैरेज इनवर्ड, वो पूरी रामायण कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ जाएगा. फिर आपको आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर अगला आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पर है, बट उसको अलग अलग नाम से यहाँ पे दर्शाया गया है. हाँ, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक हिस्सा है.
जो डेबिट साइड पे आता है, उसमें ऑफिस के खर्चे, उसमें सेलिंग के खर्चे और उसमें फाइनेंस चार्जेस करके कुछ आता है। हाँ, ये सब आप अगर ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ओके, फिर आएगा लेस इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट वो है जो अगर आपने बैंक से लोन लिया या आपने किसी से आपने डिबेंचर्स बेचे, डिबेंचर्स भी एक तरीके का लोन होता है, तो आप उनको इंटरेस्ट दोगे ना। हाँ, तो ये इंटरेस्ट को खास वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है इस लिस्ट में। इस लिस्ट में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था देयर आर डिफरेंट प्रॉफिट्स। ऊपर देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके और नीचे देखो तो नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन आप में से कुछ लोग करोगे, सर इतने प्रॉफिट्स काय को दिए गए हैं? देखो भाई, एक कंपनी के ऊपर बहुत लोग अलग अलग लोग नजर रखते हैं, बराबर। अगर एक रास्ते पर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहे हैं, बराबर, तो बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर उसकी नजर चलेगा, औरों की नजर नहीं होनी चाहिए। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में 50 लोग उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और सब लोग अपने अपने मतलब के लिए कंपनी को देख रहे, कंपनी के अकाउंट्स को देख रहे हैं। सभी को अपने अपने मतलब का प्रॉफिट जानना है। जो ओनर्स है उनको अलग प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, जो मैनेजमेंट है उनको अलग प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको अलग प्रॉफिट में इंटरेस्ट, जो लेंडर्स है उनको अलग प्रॉफिट में इंटरेस्ट, जो कस्टमर्स क्लाइंट्स है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, उनको अलग प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। Therefore, this has been made in such a style that all the people can be provided their necessary answers from one statement itself. Now, this has already been done last time in the more elongated version. Okay, मैंने वो भी बता दिया था आपके टेक्स्ट बुक में, वो डेफिनेटली अवेलेबल है। बट हाँ, शुरू हुआ था सेल्स से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक कैटेगरी है, उसमें ये पूरी कहानी आती है। ओके, तो उसमें आपको आपका ओपनिंग स्टॉक, आपको परचेस, आपको कैरेज इनवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली डेप्रीसिएशन, बट नॉट डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस आइटम्स, सेलिंग आइटम्स, नो 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 नो, ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री आइटम्स। तो वो मशीन हो सकता है, फैक्ट्री बिल्डिंग हो सकता है, पेटेंट्स एंड पैटर्न्स हो सकता है, जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द लिस्ट ऑफ फैक्ट्री। ये कहानी फिर आगे गई थी, आगे जाकर ये पीएनएल में आ गई। पीएनएल में जो लिस्ट था, मैंने लिखा था ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, बट उसमें कितने एग्जाम्पल्स है? ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम आए थे सेलिंग में, तो आपको सेल्समैन की सैलरी, शोरूम का रेंट, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। सो ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, उसके बाद में गाड़ी आगे चली गई, उसके बाद में फाइनेंस चार्जेस आया, तो उसमें कैश डिस्काउंट आता है, उसमें बैंक चार्जेस, कमीशन, अब नॉर्मल बैड डेप। नॉर्मल बैड डेप सेलिंग में आता है, अब नॉर्मल बैड डेप फाइनेंस में आता है। बैड डेप का मतलब पैसे का नुकसान। अगर वो सेलिंग एक्टिविटी की वजह से हो तो वो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। वो जैसे ही हम क्वेश्चंस आगे करें मैं आपको दोबारा याद दिला दूंगा। हाँ, एक बार ये किया तो आपको आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करना है। अभी वो इंटरेस्ट लोन पे होगा, बैंक लोन पे होगा, ओवरड्राफ्ट पे होगा, वो डिबेंचर्स पे होगा, टर्म लोन पे होगा, किसी पे भी हो सकता है। फिर आपको आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको ऐड करना है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? वो इनकम जो आपके बिजनेस के वजह से नहीं, दूसरी वजह से होता है। ऑपरेटिंग का मतलब कनेक्टेड टू बिजनेस, सो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस। ओके, डिविडेंड ऑन शेयर्स। शेयर्स खरीदना कंपनी का हर दिन का काम नहीं है, तो वो कभी कभार करती है, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है। हाँ, तो उसके ऊपर दूसरी कंपनी उनको डिविडेंड भी देती है, तो ये उनका मेन बिजनेस नहीं है। डैमेजेस रिसीव्ड। ओके, अगर कोई भी कंपनी में किसी तरह का नुकसान होता है तो मे बी इंश्योरेंस से कुछ डैमेजेस उनको मिल जाते हैं, तो ये नुकसान हर दिन नहीं होता, तो ये डैमेजेस भी हर दिन नहीं मिलते हैं, तो ये है नॉन ऑपरेटिंग। अगर ये कहानी आप आगे लेके जाओ तो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नजर आएगा, उसके एग्जाम्पल्स ऊपर दिए गए हैं। ये पूरा नॉन ऑपरेटिंग का चक्कर आप पूरा करो, आप पहुंचोगे एनपीबीटी पर। अभी सरकार, आईटी डिपार्टमेंट, नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पे नजर है। वो बोलती है चलो ये आ गया, हमको हमारा टैक्स दो, हमको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आएगा एनपीएटी, इस पे शेयर होल्डर्स का नजर है।
शेयरहोल्डर्स बोलेंगे अच्छा टैक्स दे दिया, अभी हमको डिविडेंड दो। हाँ, उसको क्या कहते हैं? अप्रोप्रिएशन, डिविडेंड देना या किसी भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना, जो मैं आने वाले क्वेश्चंस में करूंगा। आज नहीं है, अगले क्वेश्चन में मैं कर लूंगा। हाँ, प्लीज़ याद रखिए जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पर है वो मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक से है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 14 स्टैंडर्ड के लिए जो स्पेसिफिकली प्रिंट किया गया है। ओके, आप इसे ज़रूर खरीदिए। ओके, ताकि ये आपके लिए थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए काम आ सकेगा। ओके, आज का जो क्वेश्चन है वो सोल्यूशन वाइज इस तरह दिखने वाला है, इतना लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि ऑफिस में यहाँ पे 10 आइटम है, हमको 2 रहेगी। सेलिंग में यहाँ पे 10 आइटम है, हमको 1 रहेगा। हाँ, सो आई रिपीट, इट विल बी इन अ मच कंडेंस्ड फॉर्म, बट मार्किंग इसी चीज़ों की होगी कि सीओजीएस में क्या जाएगा, ऑफिस में क्या जाएगा, सेलिंग में क्या जाएगा, ऑपरेटिंग क्या है, नॉन ऑपरेटिंग क्या है, इसी चीज़ों की मार्किंग होगी। ये बाय हार्ट कृपया मत करें, उसका टेंशन ना ले। द मोमेंट हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको प्रैक्टिस करें, हमको ये समझ में आ जाएगा। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, दिखावट में थोड़ा अलग था, ये एसवाई बैफ के लिए आया है और ये एसवाई बैफ के लिए कब आया है? मार्च 2009 के अंदर। अभी ये हम इस लेक्चर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली बात, आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्या करना है? मार्किंग करने हैं। पिछली बार मार्किंग किया था, वही मार्किंग में दोबारा रिपीट करता हूं। ओके, अबाउ फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से आपको ये है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट, आपको बनाने का है वर्टिकल अप एंड डाउन। यही सेम चीजें लिखनी है। इसमें प्रॉफिट कितना है? 1,45,000। आपके आंसर में भी आना चाहिए प्रॉफिट 1,45,000। अगर दूसरा आया, आपको आया 2 लाख, तो खुश मत हो जाना, अरे सर इसको देखो 1,45,000, मैं तो 2 लाख लेके आया हूं। नहीं, गलत। कैसे तू 2 लाख लेके आया? जबकि यही इनकम एंड एक्सपेंस आपने लिखे। क्रेडिट में क्या है? इनकम। डेबिट में क्या है? एक्सपेंस। तो तूने क्या हेरा फेरी की कि तेरे को 2 लाख आ गया 1,45,000 की जगह पे? द आंसर हैज टू बी 1,45,000। यस, द लुक विल बी डिफरेंट। अगर आप सारी एक गुजराती महिला को दो, अलग स्टाइल में वो उसको ड्रेप करेगी ना, घुमाएगी। अगर एक बंगाली को दो, अगर एक मलयाली महिला को दो, अलग अलग स्टाइल में पहनते हैं ना। साड़ी वही होती है, इंफॉर्मेशन वही होता है, पहनावे का, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग रहता है। सबसे पहली बात, मार्किंग। ऊपर ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। अरे ये ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है ना, इसको कहाँ पे लिखते हैं? ये फैक्ट्री में लिखते हैं, COGS। उसकी आदत आप डालो। तो पहले हम COGS को ढूंढ रहे कि फैक्ट्री में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि वी कैन गो एज पर द सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव टू गो एज पर द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेट। तो पहले तो फैक्ट्री आने वाला है, COGS। अच्छा, परचेज भी फैक्ट्री का ही चीज है, COGS। वेजेस भी है और फैक्ट्री एक्सपेंस भी है। हाँ, इसके बाद क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक है। ये सेल्स तो इट्स द इनकम, मेन इनकम ऑफ द कंपनी, यहां से शुरुआत होगी। ओके, हाँ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये क्रेडिट में है, तो ये माइनस होगा। क्यों? डेबिट में जो है ना, हम प्लस 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 करेंगे, तो डेबिट एंड क्रेडिट इज प्लस एंड माइनस ना। आई होप दैट इज अंडरस्टूड बाय यू। तो क्रेडिट में जो COGS का आइटम आया वो माइनस। और कुछ है? एग्जामिनर बड़ा चतुर है, उसने डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट जो सिचुएटेड है एक फैक्ट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट में, उसने जानबूझ के नीचे दिया है। तो यू शुड बी स्मार्ट। नहीं, मैंने लिखा COGS, मैं भूलूंगा नहीं। अच्छा, चलो ये हो गया। ऑफिस में क्या आएगा? ऑफिस सैलरी आएगी, ऑफिस का रेंट आएगा, पोस्टेज आएगा, डायरेक्टर का फीस आएगा, क्योंकि ये सब ऑफिस के ही खर्चे हैं। एंड अगेन आई एम वेरी स्मार्ट, शाना शानी। नीचे दिया है उसने डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। प्लीज नोट, ऑफिस फर्नीचर नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना सर ऑफिस फर्नीचर? प्लांट क्यों नहीं लिखना? डिलीवरी वैन क्यों नहीं लिखना? दिया तो है, नहीं दिया है, डेप्रीसिएशन दिया है। प्लीज नोट, एसेट, दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट। इसमें एसेट लाइबिलिटी नहीं आएगा। इसमें एसेट लाइबिलिटी के ऊपर होने वाला नफा नुकसान, खर्चा, सर्विस का, मेंटेनेंस का, वो जरूर आएगा। एसेट लाइबिलिटी मत लिखना। ओके, हाँ। तो फर्नीचर का डेप्रीसिएशन आएगा ऑफिस में। सेल्समैन सैलरी कहाँ पर आएगा? ये तो सेलिंग में आता है, SD करके हमने लिखा है। एडवर्टाइजिंग और डिलीवरी एक्सपेंस, SD, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब हमने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भरा, क्योंकि वो डिबेंचर एक कर्जा होता है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में आता है। ओके,
डिलीवरी वैन भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, और इंटरेस्ट जैसे मैंने कहा। हाँ, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। वैन क्या आप हर दिन बेचते हो? नहीं, मैं कोई थोड़ी टाटा वाली कंपनी हूँ, महिंद्रा वाली कंपनी हूँ कि मेरे शोरूम है वैन के। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास पुरानी वैन थी, हमारा नाम क्या है, वेल बैलेंस्ड लिमिटेड। पुरानी वैन थी तो हमने वो बेच दी, 5 सालों में, 10 सालों के बाद बेच दी। हाँ, तो वो आपका हर दिन का क्या कहते हैं, एक्टिविटी नहीं है, काम नहीं है। तो उसके वजह से जो नुकसान आपको हुआ है वो हर दिन नहीं होता, उसको कहते हैं NOE, नॉन ऑपरेटिंग, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस। तो वी क्रिएटेड इट एज NOE। देन इनकम टैक्स, ये ना एक लेवल आएगा जिसको हम कहेंगे NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे। अच्छा, क्रेडिट में क्या है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट्स एन इनकम, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको डिविडेंड मिला। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर एवरी डे यू डोंट सेल, बट स्टिल बेचा तो प्रॉफिट तो हुआ, बट ये तेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। ये संडे मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने नहीं होता, ये कभी कभार होता है, सालों साल में एक बार, तो इसको हम NOI कहते हैं। ये पूरी हुई आपकी मार्किंग। मेरा रिक्वेस्ट है, इसके बाद मैं सॉल्व जरूर करूंगा, मेरा आंसर भी सही आ जाएगा, बट you all don't worry about what I'm going to do after this. You worry, सर वो मार्किंग नहीं समझा, ये मार्किंग नहीं समझा। द मार्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्किंग एक प्लान है। कोई भी, अगर आपको युद्ध लड़ना है, अगर आपके पास में, देखा होगा आपने, पिक्चर्स देखे होंगे कि जहां पर भारतीय सेना ने, उनकी टोली कम थी, इस तरफ थी 100, उस तरफ 1000 5000, तो भी वो लड़ाई जीत गए, क्योंकि इनका प्लान था, उनका प्लान नहीं था। वो 5000 लेकर आए बिना कोई प्लान के, चलो भाई टूट पड़ो। अरे भाई प्लान नहीं है आपके पास, प्लान होना जरूरी है, ये प्लानिंग है मार्किंग। प्लान बराबर से करो, मार्किंग समझो, फॉर्मेट को समझो, फॉर्मेट को सामने रखो, और फिर आप ये मार्किंग करो। राइट नाउ वेयर डू वी स्टार्ट विथ? वी विल स्टार्ट अ सॉल्यूशन विच लुक्स लाइक दिस। 2 पेज जाएगा, सर मैडम कोई भी पेज हो, फ्रंट बैक हो, लेफ्ट राइट हो, आपको एक पर्टिकुलर्स और दूसरा अमाउंट रेडी रखना है। प्लीज रेडी रखिए, ऊपर लिख लीजिए वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, आप उसके जगह पे लिख सकते हो इनकम स्टेटमेंट, सेम होता है। रेवेन्यू का मतलब कमाई, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ओके, ये है इन द बुक्स ऑफ वेल बैलेंस लिमिटेड। अब वो भी लिख सकते हो उसके ऊपर, इन द बुक्स ऑफ वेल बैलेंस लिमिटेड। शुरू होगा सेल से। 2 तरीके के सेल्स दिए थे ये वाले सम में। पहला कैश सेल्स दिया था, मैं अभी लिख रहा हूं थोड़े तेजी में, आप लोग चाहो तो स्पीड स्लो कर लो, या तो आप पॉज करके भी लिख सकते हो। 5,20,000। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगला क्या, कैश सेल्स के बाद दिया गया था क्रेडिट सेल्स। नॉर्मली एक कंपनी 2 तरीके के सेल्स कर सकती है, कैश एंड क्रेडिट। तो कैश का भी आप लिख लो, क्रेडिट का भी आप लिख लो। मैं अगेन एंड अगेन मॉनिटर की ओर देख रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ कंफर्म करना है कि जो साउंड की रिकॉर्डिंग हो रही है वो सही से सटीक तरीके से हो रही है कि नहीं। ये दोनों सेल्स जो है आप ऐड करो तो आपको मिलता है टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स कितना होगा? वेल ऐड करोगे तो 20,20,000 मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, दिखा देता हूं क्या, लेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। ऊपर दिया है देखो ना, रिटर्न्स, तो वो सेल्स रिटर्न होगा, तो वो हम माइनस कर लेंगे। ओके, चलिए हमने रिटर्न्स एंड अलाउंसेस माइनस कर लिया। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट कहते हैं उसको, वो 20,000 निकल गया। वेरी इंपॉर्टेंटली अभी क्या आया, नेट सेल्स। एक कंपनी के लिए ये सबसे बड़ा अमाउंट है, सबसे बड़ी इनकम है, वो दुनिया को बताएगी हमने 20 लाख का माल बेचा है। नेट, ग्रॉस इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि खराब माल वापस आता है ना, नेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाके चैप्टर्स पे नेट सेल्स के बेसिस पर बहुत अनेक अलग अलग कैलकुलेशंस हम करने वाले हैं। ओके, नेट सेल्स के बाद क्या करूं? अभी देखो हमको ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करना है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, उसमें क्या क्या आएगा देखो, एक बार मैं क्वेश्चन का नजारा दिखा देता हूं। आप टेक्स्ट बुक रखो सामने, आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। ओके, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में है? देखो पहले तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज भी है, वेजेस भी है, फैक्ट्री एक्सपेंस भी है। फिर नीचे आओगे तो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट है। ये सारी चीजें डेबिट में है, प्लस 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 प्लस।
और क्लोजिंग स्टॉक जो है फैक्ट्री की चीज बट वो क्रेडिट में है तो वो माइनस करेंगे। ओके, तो COGS के अंदर जो डेबिट में है वो सब हम प्लस करती जाएंगे। तो पहला तो आया रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 7 लाख, देन केम परचेस और परचेसेस 9 लाख। अगर परचेस रिटर्न होगा तो हम इसमें से माइनस करेंगे, नहीं है तो चिंता ना करें। अगेन कुछ बच्चे ये कहे कि सर हमारे टीचर जो है ना 3 कॉलम बनाते हैं, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, आपने एक ही कॉलम बनाया। देखिए ऐसा है, आगे जाके चैप्टर्स में सारी चीज़ें एक कॉलम में ही सॉल्व होगी, तो मैं अभी से आपको उसकी आदत डाल रहा हूँ। बाकी देर इज नो, एंड ऑल्सो जब 3 कॉलम रहते कुछ बच्चे कंफ्यूज, कुछ नहीं बहुत बच्चे, सर 3 कॉलम है तो पहले में लिखो, दूसरे में लिखो, तीसरे में लिखो, तो मेरे को वो चॉइस ही देना नहीं है, तो वो कंफ्यूजन हट जाती है। भैया सर जी मैडम जी एक ही कॉलम है अमाउंट के लिए, उसी में आपको फिट करना है। नेक्स्ट वेजेस 1,50,000, फैक्ट्री के खर्चे 3,50,000, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 30,000। ये पूरा अगर आप ऐड करो आपको एक नंबर मिलेगा, जो लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है, बट आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। कितना? 6 लाख। सो बाय एडिंग व्हाट 7 लाख, 9, 1,50,000, 3,50,000, मैं पीछे नहीं देख रहा, बस मेरे पीछे कुछ नहीं है, बोर्ड इस तरफ है मेरे लिए, और 30,000, और माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक। क्यों माइनस किया? अरे वो क्रेडिट में है ना, इसके लिए। ओके, तो क्या आया? अब कैल्सी पे आप कर लो। ओके, सामने रख लो एक कैल्सी। ओके, कैल्सी का इस्तेमाल तो हम भी करते हैं, एंड इट इज़ गुड टू हैव अ कैल्सी जिसकी कैपेबिलिटी 12 से लेके 14 डिजिट तक की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि करोड़ों में जैसे ही नंबर जाएगा और आपकी कैल्सी से 10 डिजिट दिखा सकती है तो वो एरर दिखाना स्टार्ट करेंगी। सो द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,30,000। व्हाट इज दिस? देखो ये फैक्ट्री का खर्चा है, इसको अगर आप नेट सेल से माइनस करो तो आपको आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। था तो बढ़िया है, तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं। नेट सेल्स माइनस COGS 4,70,000, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की समाप्ति। चलो आप पॉज कर लो, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हुआ तो फिर क्या शुरू हुआ? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हुआ। उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस के साथ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जनवरी फरवरी मार्च 2020 2021 2022 नॉर्मल खर्चे, इसका पहला कैटेगरी है ऑफिस का खर्चा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, देखो कोई बात नहीं है, ऑफिस के कितने खर्चे? पहले तो ऑफिस सैलरी है, ऑफिस रेंट है, पोस्टेज है, डायरेक्टर्स फीस है, सब में लिखूंगा ऐड 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 ऐड, और उसके बाद में नीचे आओगे ना तो आपको डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर मिलेगा। चलो जिधर भी ऑफिस लिखा है एक एक करके, एक के बाद एक हम लोग लिख लेते हैं। आप बोलोगे सर वो मेरा पेज खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, दूसरे पेज पे चले जाओ, फॉर्मेट तो वही है, नो प्रॉब्लम्स। ओके, ऑफिस सैलरी 25,000, ऑफिस रेंट 39,000, ऊपर पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000, डायरेक्टर्स फीस। जितना आपको ऑफिस का खर्चा क्वेश्चन में मिला, जहां पर मिला, ऐसा मत बोला सर वो तो इतना दूर दिया क्वेश्चन में दिया ना, ढूंढ के रेडी रखना आपका काम था। ऐड कर लो, आपको ऑफिस का आंसर आ जाएगा 85,000, बराबर। ऑफिस का जैसे ही खत्म हो गया, सेलिंग की का खर्चा स्टार्ट हो जाता है। वी कॉल इट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में है, क्यों नहीं है? क्योंकि सभी चीज़ें क्वेश्चन से तो बन रही है, तो क्वेश्चन में तो होगा ही होगा। हाँ, क्या है? सेल्समैन का सैलरी है, एडवर्टाइजिंग है, डिलीवरी एक्सपेंस है, और थोड़ा नीचे आओगे तो हमेशा डेप्रीसिएशन के साथ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, because the examiner intentionally, instead of giving it up, he gives it somewhere down. Okay, on delivery van. So I think we have got around 4 items of selling खर्चा, selling and distribution expenses. पहले तो सेल्समैन का सैलरी आ गया 12,000, एडवर्टाइजिंग का खर्चा आ गया, पब्लिसिटी का खर्चा आ गया, डिलीवरी के एक्सपेंसेस आ जाएगी, आपके घर पे दूध की डिलीवरी होती है, न्यूज़पेपर की डिलीवरी होती है, इतनी चीज़ों की डिलीवरी होती है। अमेजॉन डिलीवरी करता है, फ्लिपकार्ट डिलीवरी करता है, स्विगी डिलीवरी करता है, जोमेटो डिलीवरी करता है, सभी लोग डिलीवरी का ही काम करते हैं और बढ़िया करते हैं। टोटल ऐड किया 70,000, तो ए इज 85,000, बी इज 70,000। व्हाट अबाउट फाइनेंस एक्सपेंसेस? था ना? था नहीं, एक्चुअली नहीं था। ओ, तो जो इसके पहले बताया गया था ना, अच्छा क्या बताया गया था ये आप ऊपर देख लो। फाइनेंस के अंदर कैश डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, अबनॉर्मल बैड डेट, नहीं ऐसा तो कुछ था नहीं। ओके, नहीं था तो फिर टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। कहाँ तक आ गए?
ओके, अभी आप टोटल करो ABC, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आपको टोटल आ जाएगा, कितना है 1,55,000, 55,000। नाउ व्हाट टू डू ऑफ दिस 1,55,000, ये आपका खर्चा है, आपके मुनाफे में से इसको माइनस करो। मुनाफा किधर है, वो वाला ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो वर्डिंग, जो लेवल आपका होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में OPBI। हाँ, 3,15,000। आई रिपीट सर, 3,15,000 कैसे आया, प्लीज नोट ग्रॉस प्रॉफिट 4,70,000 माइनस टोटल। क्यों माइनस किया, अरे लिखा है ना वहां पे आपने लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो लेस ऑब्वियसली करना बनता है। हाँ, अब क्या करूं, देखो बिफोर इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, तो इंटरेस्ट का खर्चा दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, इंटरेस्ट किसके लिए होता है, डिबेंचर पे होता है, लोन पे होता है, पब्लिक डिपॉजिट पे होता है। इस क्वेश्चन में इसके लिए फॉर्मेट सामने रखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्वेश्चन में दिया है, क्यों नहीं दिया है, देखो ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट आप लिखो, बिकॉज दिस सोल्यूशन माय डियर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्किंग कोई भी कर लेगा ना, तो ये सोल्यूशन तो कोई भी बना सकता है, एनीबडी कैन मेक दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। मार्किंग ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, मार्किंग जिसको फॉर्मेट समझा है, फॉर्मेट का बहाव, फ्लो समझा है, वो ही कर पाएगा। ओके, चलो ये माइनस कर लिया मैंने। अभी आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अभी ये हुआ बिजनेस की कमाई, बिजनेस के कार्य से, एक्टिविटी से कनेक्टेड कमाई, बराबर। हाँ, इसके बाद आता है नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम। आपकी मर्जी, आप इनकम पहले लिखो तो प्लस, आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाद में लिखो तो माइनस, आपकी मर्जी। मैंने लिखा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये कहां पर है, ये आपको क्वेश्चन में ही नजर आएगी। ये आपको, ये देखो यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। हर दिन आप वैन बेचते हो नहीं, तो हर दिन नहीं बेचते हो तो ये आपके बिजनेस से कनेक्टेड, जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये आपको लिखना है। ओके, जैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करें, तीसरा क्वेश्चन करें, आपको और एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। 5,000 आप माइनस करो, इसका कोई नाम नहीं है, 2,90,000 का कोई नाम नहीं है। अभी आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करने हैं, वो है, क्यों नहीं है, क्रेडिट साइड पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा क्वेश्चन मत देखो, क्रेडिट साइड पे देखो, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम होता है। हाँ, तो है ना, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है। ओके, थोड़ा अटपटा लगेगा कि सर आप यहाँ देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो, वो मेरे आसपास स्क्रीन होते हैं ना, तो मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ता है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ। हाँ, तो क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बढ़ता है मेरे लिए, बट आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन है। ओके, तो चलो लिख लेते हैं, ये हमको ऐड करना है, बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू कैन नोटिस दैट डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 मैंने इनर कॉलम में लिखा है ताकि मैं ऐड करके बाहर डाल सकूँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये दोनों 30,000 है, ये ऐड करने से आपको आता है NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। द मोमेंट ये आता है स्क्रीन पे, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, सरकार की वो विभाग, वो डिवीजन, उनके कान खड़े होते हैं, अरे वेल बैलेंस लिमिटेड का NPBT आ गया, चलो हम उनको क्या बेचते हैं, रिमाइंडर, टैक्स भरो। अभी कंपनी है, भारत देश के अंदर टैक्स भरना अनिवार्य है, कंपलसरी है। हाँ, सो हाउ मच इज द टैक्स दैट दी इन द होल स्टेटमेंट, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना, इसमें एक बात सिंपल है, क्या, खर्चा है तो माइनस और कमाई है तो प्लस, खर्चा है तो माइनस, कमाई है तो प्लस, बाकी अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो ये लेवल्स आपको याद रखने हैं। डोंट वरी, बाय हार्ट मत करना प्लीज, देयर इज नो नीड टू बाय हार्ट, बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल, ओके, जो गाड़ी चला तो लेते हैं, बट गाड़ी के अंदर 5,000 हिस्से हैं, उनको उनका नाम भी नहीं पता। ऐसा मतलब मैं भी हूँ। ओके, क्यों, गाड़ी चलाना कैसे सीख लिया, अरे वो प्रैक्टिस कर लिया, हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा हम चलाते थे, हम समझ लिया। तो प्रैक्टिस करोगे तो मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ भी आप समझ जाओगे। मेरे पीछे है क्या, इनकम टैक्स कितना है, 1,75,000। चलो भाई, सरकार को तो टैक्स देना है, टैक्स देना बनता है, चलो माइनस कर लिया। फिर क्या आएगा, सरकार खुश, अभी हमारा जो शेयर होल्डर्स है ना, उनके कान खड़े हो गए, अरे NPAT आ गया, कितना आया, 1,45,000। हाँ, तो क्वेश्चन में भी वही था, बराबर है ना। यू कांट, आप कोई मैजिक नहीं कर रहे हो, अलग आया मेरे को NPAT, नहीं, खुश मत होना, जो क्वेश्चन में था वही आंसर आपको लेकर आना है। ओके, 1,45,000। ओके, प्लीज रिमेंबर, व्हाट यू सी बिहाइंड मी is the vertical format. The question
वॉज इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, लेफ्ट राइट। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे आता है अकाउंट स्टाइल में, आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, और कभी कभी थोड़ा अलग स्टाइल का क्वेश्चन आएगा, बट आंसर हमेशा और हमेशा वर्टिकल स्टाइल में बनेगा। अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट बनेगा, अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट बनेगा। उसका नाम रेवेन्यू स्टेटमेंट भी कहा जाता है। प्लीज नोट दैट। अगेन, मार्किंग पे ध्यान आपका ज्यादा होना चाहिए। ये जो पीछे फॉर्मेट बना है, अगर मार्किंग सही हो ऑटोमेटिकली ये सही बन जाएगा। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया, ओके। अगर आप सोच रहे हो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं कीबोर्ड पे की ढूंढ रहा था शिफ्ट होने के लिए, ओके। अगर ये समझा आपको तो आई एम वेरी ग्लैड टू बी ऑफ हेल्प, बट देन इफ आई कैन बी ऑफ हेल्प टू मेनी मोर दैट वुड ऑल्सो बी अमेजिंग। तो ये लेक्चर की जानकारी और ये लेक्चर्स की पूरी सीरीज की जानकारी अब दूसरों दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ओके। कभी कभी जबान फिसल जाती है, ओके। सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, ओके, दोस्त दुश्मन जो भी है, उनको जानकारी मिले ये पूरे सब्जेक्ट के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, ओके। ये चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली एक प्रॉपर ऑर्डर में अवेलेबल है, ओके। आई होप एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन आपको समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप डिसलाइक करते हो जी, कोई तकलीफ की बात नहीं है, पर डिसलाइक की जो वजह है, कोई रीज़न रहेगा, आप कोई सजेशन होगा आपके पास में, कुछ गलती आपने देखी रहेगी, हमको ज़रूर बता देना, ओके। अपना ख्याल रखिए। जब तक हम दोबारा ना मिले, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबा दीजिए। दोस्तों तक भी हमारे ये लेक्चर का लिंक आप ज़रूर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मीडियम से आप आपके कॉलेज के रूप में शेयर कर लीजिए, ताकि फ़ायदा सभी का होगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में हमेशा उसे लिख सकते हो। हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की आपकी हमारी तरफ से कोशिश पूरी तरह से करेंगे। जब तक हम अगली बार ना मिले, अपना ख्याल रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आई होप लव सराउंड्स यू ऑलवेज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड डे, बाय।